Good morning, student. I am Rajendra Simori from the Gyan Manjari Vidyapith Mova in class 9th. Today we will start a new unit, that is unit number 3, coordinate geometry. So in this unit, already it's a very smallest unit into the entire syllabus. So it's a very easy also. So you have to prepare first that. Now we are going on to this geometry part. So whatever the geometry concepts, first we have to get the idea regarding the geometry, some of the terminology is required. So all the terminology first we have to discuss, and then after we will going into the entire process of this coordinate geometry. Okay, so let us start on that point. First of all, in this coordinate geometry, this is the unit number 3 and this is your lecture number 1 in this unit. Okay, so it's a very easy concept, so you have to watch carefully whatever I mentioned in this video, because of this concepts is very revealed in your mind, because of once you have to read from the textbook and you have to do your own, then it also be very easy. So that kind of the easy concept is that's why you have to take seriously, and you have to go through each and every concept that is given into the textbook. So first of all, in this coordinate geometry, we have to start from the Cartesian system. So first of all, we have to discuss about the Cartesian system. What do you understand about this Cartesian system is there? So first of all, if I put here some plane area, suppose we have to draw one line, and this is a one particular square. Okay, so this is a we can say that it's a one kind of the area. This is a one kind of the plane. If we have to put the suppose we get the Cartesian system before on that, we have to understood here the first thing is that what is the meaning of plane. Suppose this is a one whiteboard. Okay, so whiteboard having the one boundary, so we can say that it's a plane area. So this is a one plane area. We can put any table surface, top of the table, we can say that it's a one area of table, top area of the table, if we put that way. So for us, this particular area of the top of that table, we can say that it's a plane area of that table. So similar way, in the geometry concepts, one plane surface is required, because of if we have used some plane area, we can easily divide this plane area into the number of parts also. So same way we are using this Cartesian. So Cartesian is a one kind of the plane area. It is a one kind of the plane area is called a Cartesian. It is also known as the coordinates plane. इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं. कार्टेशियन प्लेन का मतलब ही ऐसा है कि if we are using some of the area, if we take suppose in our room, this is having one area, length, breadth and height. So if we have to combine, then it becomes a one area. So among them, which one is the plane area? That is obviously ground floor. So ground floor is our area. So in room where our style is going over there, and if we take some style on it, so we take 2 by 2 style in our flooring. So we can say that this 2 by 2 is one of the area, and we can divide this 2 by 2 in number of parts. Similar way in geometry also, we have to divide some plane area in number of parts. So that concepts we have to take here. So in this Cartesian, it is also known as the coordinates plane or Cartesian plane. That is also be known as. Second concept is that we have to also going about the axis. A-X-E-S. मतलब this is the plural of axis. So axis is also be required here, because we have to going about the two axes, x and y.
So whatever the perpendicular lines we have to display. For example, ऐसा मैंने बोल रहा है, एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी. This is a horizontal line and this is a vertical line. So this is a one kind of perpendicular figure is there. This is a perpendicular. Perpendicular का मतलब भी होता है कि दोनों कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होती है, तभी हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ परपेंडिकुलर. सो दिस इज अ वन axis, horizontal axis, vertical axis. Horizontal axis, we can say that the y axis is there. Vertical, we can say that it's x axis. So we can divide our surface, our Cartesian plane into axis. Axis के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. हमारे पास ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भी हम दो परपेंडिकुलर लाइन से उसको डिवाइड कर सकते हैं. इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि एक कोई भी कोऑर्डिनेट्स प्लेन हमारे पास है, उसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन से उसको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि हमें पता है कि हमें इस पार्ट का ही यूज करना है, इसी पार्ट का यूज करना है, तो हम उसके बाद हम कह सकते हैं कि दिस ऑल आर द पार्ट्स हैविंग द इक्वल नेम 1 2 3 4. ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं. कब हम कर सकते हैं? जब हम उसकी लेंथ ब्रेथ के बारे में हमें पता होता है. लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें पता है, देन वी कैन इजीली डिवाइड दैट पोर्शन, दैट एरिया, दैट प्लेन, वी कैन डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ पार्ट्स. सिमिलर वे वी आर यूजिंग इन दिस जियोमेट्री. तो ये जियोमेट्री कंसेप्ट बड़ा इजी है. तो एक्सिस का रोल यहाँ पे आएगा. परपेंडिकुलर लाइंस आप यूज करेंगे इसमें जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मैंने आपको बोला अभी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसको हम एक्स एक्सिस को इंडिकेट करेंगे. वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस इंडिकेट करेंगे. एक्स एक्सिस का एक और नाम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में यूज किया जाएगा, जिसका नाम एब्सिसा होगा. ABCISSA. दैट इज अनदर नेम ऑफ द एक्स एक्सिस. सिमिलर वे y axis also having the name, that is ordinates are there. So ordinate is the another name of the coordinate geometry way of y axis, and x axis का नाम एब्सिसा. इस पर्टिकुलर चैप्टर में से ज्यादातर ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा आएंगे. So you can also thoroughly focus on different terms as well as definitions of each and everything, because of it's required into the future reference also. So without failing you can focus on it, and you can also read simultaneously this particular fundamentals of it. Next we are using that, suppose हम x एक्सिस और y एक्सिस को कंसीडर कर लिया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस को कंसीडर कर लिए, तो हमें पता है कि दिस इज अ x एक्सिस एंड दिस इज अ y एक्सिस. हियर कंसीडर द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है कि जहां कोऑर्डिनेट्स x एंड y, दो कोऑर्डिनेट्स हम यहां पे यूज करेंगे पूरे कार्टेशियन सिस्टम में. दो कोऑर्डिनेट्स होंगे कितने? x एंड y. दो कोऑर्डिनेट्स का हम यूज करेंगे. पहली जो वैल्यू होगी वो x एक्सिस की होगी और दूसरी जो वैल्यू होगी वो y एक्सिस की होगी. तो x एक्सिस और y एक्सिस का ओरिजिन कहां से स्टार्ट होता है? मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन, हम ऐसा बोले कि ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ऑब्वियसली 0 0 होता है. 0 0 से हम आगे बढ़ेंगे, मतलब सेंटर पॉइंट इज ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज अ 0. देन आफ्टर वी गो फॉर द x axis in the positive sign, left side of the x axis that considered x dash here, x dash is considered the negative, y that is a positive, then downside that is y dash. So y dash is always be considered the negative. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो पोजीशन मिल रही है x चारों चार की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स का कहां से होगा? 0 0 से होगा. दूसरी चीज, एक्सिस डिवाइड्स इन 4 पार्ट्स. ये एक्सिस कितने पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड करता है? 4 पार्ट. अब ये चारों पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. इसमें भी यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेंट 1, दिस इज अ क्वाड्रेंट 2,
this is a quadrant 3, and this is a quadrant 4. So these are the 4 quadrant of plane, coordinate plane that axis divides it. मतलब जो भी दो एक्सिस हमने लिए x एंड y, उससे हमारे पास ये पूरा सरफेस एरिया कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 4 पार्ट में. उस सभी पार्ट को हम यूनिकली क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट बोलते हैं. क्वाड्रेंट का मतलब होता है दिस इज कंसिडर्ड द क्वाड्रेंट, एंड क्वाड्रेंट, दिस इज अ क्वाड्रेंट 1, दिस इज अ क्वाड्रेंट 2, दिस इज अ क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज अ क्वाड्रेंट 4. अब ये चारों 4 क्वाड्रेंट आप अपने सामने रख सकते हैं. मतलब हमें अभी तक ये पता चला कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम को एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस से डिवाइड किया जा सकता है. डिवाइड करने के बाद वो प्लेन एरिया 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं. हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं. क्वाड्रेंट में भी आप एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करोगे तो फर्स्ट यहां से स्टार्ट होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वी हैव. इनसाइड द फर्स्ट क्वाड्रेंट हम अब उस क्वाड्रेंट को बिगर साइन में देखेंगे, जिससे आपको और भी कार्टेशियन सिस्टम में पता चले. ओके, सो आई होप सो दैट दिस थिंग्स आर वेरी इजी. एब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, वो भी आपको याद रखना है. एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा भी है, जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं. और वाई एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट्स बोलेंगे. और ऑर्डिनेट्स अपना वाई कोऑर्डिनेट्स होगा. तो ये जो चीज आपको मैंने बताई, दैट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ दिस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. Today I also send one keynotes related with this unit number 3, and I will send you to the one PDF. So that PDF you have to cover that PDF whole, and you have to write each and every points as a tax. अब टैक्स की तरह अपनी फेयर बुक में ये की नोट आज लिख लेना है. वो की नोट ही आपकी पूरे चैप्टर की थियरी रहेगी. मतलब यू हैव टू राइट इन योर फेयर बुक ऑल्सो. ओके, so just you have to check it out, this each and every concept, and then after we will discuss into the next portion here. Okay, so let us move on to the understandings about the Cartesian system. Now these Cartesian systems, I put here that this particular lines, horizontal and the vertical. Now we know that horizontal is considered as a x-axis. आपको पता चल रहा है, this is a x-axis, okay, and this is a y-axis, both having the intersect each other. That's why it is in the form of perpendicular. इसको हम क्या बोलेंगे? perpendicular में लगा दिया. ओके, अभी मैंने बोला आपको कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स. ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. ये पूरे कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट्स प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए. चारों पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसका यूनिक एक नाम है. इसको, इस पार्ट को पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे. ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. यानी इसकी डायरेक्शन है वो ऐसे चलती है. आपको देख सकते हैं ये जो पूरा है वो सिस्टम ऐसे चला. मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू दैट. मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसी डायरेक्शन में हमें जाना है. और जब तक हम ग्राफ की सिस्टम सीखेंगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सीखेंगे, तब तक हमें यही चीज याद रखनी है. दिस विल बी ऑल्सो बी एंटाइटल इन 10th क्लास. 10th क्लास में भी यही चीज आपको सीखनी है. सो बी केयरफुल अबाउट इट. नाउ दूसरी चीज आप ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम देखो तो 0 0 से ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन कहां से होता है? 0 0 से. अब 0 0 से स्टार्ट हुआ तो ये सब साइड है एक्स एक्सिस में, वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. 1 2 3 4 5. आई एम मेंशनिंग द नेम ऑन दैट एक्स एक्सिस. ओके, सो दिस इज अ पॉजिटिव. सिमिलर वे in the y axis also having the 1 2 3 4 and 5, that is also be positive.
तो दोनों को मिला दो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला दो, तो दोनों साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, सो पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एंड वाई बोथ कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये समझ में आ गया। यदि याद नहीं रहता है तो फर्स्ट पहले से आपको याद रहना है कि कैसे उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में दोनों पॉजिटिव क्यों है वो भी मैंने आपको बताया कि 0 0 से इस साइड लिखेंगे। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप नंबर लाइन पे करते थे अभी तक, तो हम क्या करते थे याद है कि हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते थे नंबर लाइन में, उसमें सेंटर 0 रखते थे। फिर यदि हम राइट साइड में जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और यदि हम वो नेगेटिव लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो सब नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट होगा। सिमिलर वे वही आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, इसको ये एक्स एक्सिस मान लो तो ये 0 आपका ओरिजिन हो गया। यदि आप राइट साइड पे जा रहे हो तो ये सब पॉजिटिव हो गए। वही चीज को उल्टा कर दो ऐसे, तो इसको आप कंसीडर करो तो टॉप मोस्ट है वो आपकी पॉजिटिव हो गई, 1 2 3 4 ये पॉजिटिव हो गया। नीचे आप जाओगे डाउन साइड वो आपका हो गया माइनस। मतलब आपको समझ में आ गया। वही चीज हम यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, नथिंग टू न्यू। नाउ दिस पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पहला एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर ले। सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव मतलब ये -1 -2 -3 -4, तो ये एक्स का बाकी का जो पोर्शन 0 के लेफ्ट साइड पे है तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो एक नेगेटिव होगा तो y एक्सिस यहाँ पे कॉमन रहता है दोनों क्वाड्रेंट में, एक y तो ये कॉमन रहता है। वो कितनी कैसी साइन है यहाँ पे, सभी नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव होगा, पहला कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज ए x एंड सेकंड वन कोऑर्डिनेट इज कंसीडर्ड एज ए y, सो -x एंड y। क्लियर। सिमिलर वे वी आर गोइंग फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो तो जो आपका y है वो नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, तो बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेगेटिव नेगेटिव -x -y। सिमिलर वे वी आर गोइंग फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो तो x एक्सिस आपका पॉजिटिव है, y एक्सिस आपको आप देखो तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो x और y कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा इसमें, नेगेटिव। अब आप देखो जब हम प्लॉट करेंगे कोई भी वैल्यू इस ग्राफ में, इस कार्टेशियन प्लेन पे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट में कौन सी जगह पे आपका जो ग्राफ का पॉइंट है वो पॉइंट कर रहे हो, प्लॉट कर रहे हो। जब आप प्लॉट करना सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। यदि x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आई तो भी पॉजिटिव होगी। यदि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आई तो वो नेगेटिव होगी। यदि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आई तो वो भी नेगेटिव होगी। मतलब ऐसा कि सेकंड एंड थर्ड ये दोनों में यदि x का कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ही होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ में यदि आप उसको प्लॉट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। हाँ, रिमेन्स आपको 2 ही कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने होंगे, एक तो x के ऊपर आपको करना होगा, एक y के ऊपर करना होगा। यानी 2 ही कोऑर्डिनेट्स है और कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन 0 0 है। इतनी चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की। दिस इज योर होल कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट्स प्लेन। आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड वेल what I am telling or what I am telling just going for this particular Cartesian system. यदि ये आपके माइंड में सेट हो जाती है then nothing too hard in whole chapter. Okay, so just you have to check it out which things we have to include over here. Okay.
So at the end of this session, today's lecture, I just explain all the terminologies and Cartesian systems or coordinate systems. Okay, so today you have to learn about all the fundamentals from your textbook. That is also one of the homework for you. And second thing, whatever the PDF I send with this video, you have to study that keynotes and you have to write all keynotes 2 times in today's homework. Okay, so I mentioned here that write keynotes 2 times in your rough book from the given PDF. Whatever the PDF I send it with this video. तो आपको 2 चीज करनी है. टेक्स्ट बुक में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है. दूसरी चीज, आपको जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूं इस लेक्चर के साथ, उस पीडीएफ में से आपको की नोट्स 2 टाइम्स होमवर्क में लिख के भेजना है. ओके, आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड वेल व्हाट आई एम टेलिंग टुडे, एंड whatever the questions you have to raised, but this particular unit is very easy, so you have to try it at very glance way, and rapidly you have to go forward of this. Okay, so I hope so that you enjoy a lot this lecture, and we will meet very soon in the next lecture. Till you have to work hard on this particular coordinate geometry. Thank you very much.